ایک ٹی وی کی نشریات چل رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک ٹیلی فون کال آتی ہے۔ کال میں کہا جاتا ہے کہ بھائی میری 4 شادیاں ہو چکی ہیں اور میں 5ویں شادی کا بھی طالب ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری اصل میں 4 شادیاں پہلے ہوئی ہوئی ہیں، تو اب یہ مسئلہ نا تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5ویں شادی پوچھنا میں ہی کر نہیں سکتے ہیں یا چاہیے نہیں آپ کر کو، سکتے۔ 4 شادیاں ہو چکی ہیں موصوف کی، 5ویں کے چکر میں بس یہ ہے۔ او بھائی یہ میرے ہاتھ آپ کے آگے ہیں، خدا کے لیے ان شادیوں سے بھی کوئی باہر آ جاؤ یار۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے سوا، اسی میں ہی لگے ہوئے ہو یار۔ اسی کے ساتھ ہی اسی پروگرام کے اندر پھر کچھ دنوں کے بعد یہ کال آتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچر ہونے کے ساتھ میں ظاہر ہے ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ وہاں کے جو ہیڈ ہیں وہ شادی شدہ ہیں اور وہ مجھ میں دلچسپی لے رہے ہیں، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ مولانا صاحب بس میں بہت پریشان ہوں اور بہت مشکل سے میں نے کال کی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں نا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت نہیں جی خراب، میری ان کی وہ طبیعت تو پریشان ٹھیک ہے، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، دراصل میں ایک مسئلے میں پھنس گئی ہوں۔ جی میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں نا، تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک پرنسپل ہیں جو آلریڈی میرڈ ہیں، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ جی وہاں پہ ایک پرنسپل ہیں جو کہ میرڈ ہے نا، تو مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ان سب موضوعات پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ شو چل رہا تھا ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر، اور جب پہلی کال آتی ہے اور اس میں جویریہ سعود جو کہ میزبان ہیں اور ایک مولانا صاحب جس کا نام آزاد جمیل صاحب ہیں، وہ جب اس پر گفتگو کرتے ہیں، وہ کلپ اس حد تک وائرل ہوتا ہے کہ اس وائرل ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر یہ دوبارہ کال آ جاتی ہے۔ یہ معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے، رکتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک بڑے ہی معروف اینکر ہیں جس کا نام اقرار الحسن ہے، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف شوز کے اندر اپنی مختلف بیویوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی کثرت ازدواج یعنی کہ زیادہ بیویوں کے متعلق ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے۔ نقطہ یہاں پر آ کر رکتا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا معروف نام کے جسے دانش تیمور کہا جاتا ہے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، عائزہ خان کے ساتھ، اور یہ بھی ایک رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے۔ اس رمضان ٹرانسمیشن کے دوران عائزہ خان سے وہ یہ کہتے ہیں، اس کے موجودگی میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ویسے مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن فی الحال میں عائزہ خان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بہت زیادہ ڈسکشن میں آتی ہے، یہاں پر کئی اہم سوالات اور کئی اہم چیزیں جنم لیتی ہے۔ آخر رمضان ٹرانسمیشن میں شادی ہی کیوں موضوع ہے اور یہ شادی کی ویڈیوز اس حد تک وائرل کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور کیا اس مہینے میں ماہ مبارک کے اندر جب ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، ہمیں اپنے پروردگار سے لا کس طریقے سے لگانی ہے، ایسی صورتحال میں یہ تمام ٹرانسمیشنز کے اندر جو چیزیں سب سے زیادہ وائرل اور جو سوالات سب سے زیادہ پوچھنے میں آ رہے ہیں وہ شادیوں کے متعلق ہی کیوں ہیں۔ آج کا موضوع خاص طور پر یہ رہے گا اور اس میں ہم آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے کہ آخر یہ شادیوں کا موضوع ہی کیوں زیر بحث ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، آخر ایسا مواد کیوں تیار کیا جاتا ہے اور یہ ریٹنگ فینومینا کس لیے کام کرتا ہے۔ آج کا پروگرام یہی رہے گا، لیکن اس ساری تفصیلات سے پہلے میں جب آپ کو بتاؤں گا اور میں بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کروں گا کہ جناب یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے مجھ پر بھی ایک رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل سے پہلے میں آپ سب کا تعاون ضرور اس پر چاہوں گا، اور اس میں تعاون اور آپ کا ساتھ مجھے اسی سے ملتا ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ حق اور سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ تو پہلے چینل سبسکرائب کیجیے، اس کے بعد اس کہانی کو آگے بڑھائیں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو جو ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہے اس میں، اور جو معلوماتی ویڈیوز تو اتنی وائرل نہیں ہوتی، لیکن جو ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہے اس میں کثرت ازدواج کا معاملہ ضرور ہے۔ آپ
कई उलमाए किराम को अगर लीजिए, उन उलमाए किराम की अगर आप गुफ्तगू सुनिए तो जैसे हमने पिछली बार भी कही थी, मौलाना तारिक मसूद साहब, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और इस तरह के बहुत सारे लोगों की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उसमें वो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होती है कि जिसमें कसरत इज़्दवाज का ज़िक्र होता है। आम तौर पर इसी कसरत इज़्दवाज के हवाले से मारूफ एंकर इकरारुल हसन भी सामने आते हैं, जिनकी अक्सर ये बातें डिस्कशन में आती है कि अब उनकी दूसरी बीवी है, ये इनकी तीसरी बीवी है और पता नहीं क्या। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रहती हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। ये हो गया पहला नुक्ता। इस फिनोमेना को बहुत सारे टीवी चैनल्स में बैठे हुए एंकर्स और ट्रांसमिशन चलाने वाले लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर तमाम बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पर जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने मौजूद है। इन तमाम टीवी चैनल्स पे मारूफ एंकर्स, मॉडल्स या अदाकार या अदाकाराएँ इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन या रमज़ान का बुनियादी मकसद ही होना ये चाहिए कि हमें किस हद तक दीन के करीब लेकर आना है। वो तमाम अदाकार या अदाकाराएँ कि जिनका किरदार के बारे में बहुत सारे लोग बहुत वाज़ेह होते हैं कि क्या इनका किरदार रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन उन्हें बड़ी ही भारी कीमतों पर वहाँ पर एंकरशिप के लिए लाया जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है रेटिंग यानी कि धंधा। ये शोज़ जितने ज़्यादा देखे जाएँगे तो उसी बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जितनी ज़्यादा वायरल होंगी, उतने ज़्यादा इश्तिहारात इनके पास मिलेंगे। अब एक अंडरस्टूड सी बात है कि इन तमाम के पास वो दीनी मालूमात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये लोगों को अपनी तरफ माइल कर सके और लोग उनकी मालूमात की बुनियाद पर इनकी तरफ आ सकें। इनके पास जो सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ होती है वो ऐसे इश्यूज़ पर डिस्कशन करना होता है कि जिसकी बुनियाद पर ये ज़्यादा वायरल हो सकें और ये ज़्यादा रेटिंग्स हासिल कर सकें। अब आप क्या जवेरिया सऊद से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन कर रही हो और वो अहादीस और कुरान के हवाले से आपको वो मालूमात फराहम कर रही हो कि जिसकी बुनियाद पर ये ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें? और क्या वो उलमाए किराम के जो इनके साथ मौजूद होते हैं वो महरम और नामहरम का ख्याल रखते हुए वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि अपनी गुफ्तगू के दौरान अपने आप को दीनी हवालों से पेश करते हैं कि कहाँ महरम होना चाहिए और कहाँ नामहरम होना चाहिए, लेकिन आपको ट्रांसमिशंस के अंदर नज़र आएँगे। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ और लोगों को देखिए कि जिसमें बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ कि जो अदाकाराएँ इस वक्त शोज़ कर रही हैं और जो अदाकार इसमें शोज़ कर रहे हैं। अब इनके पास तरीक़ेकार क्या होता है? ये वो मवाद लेकर आए हैं, या तो ये कॉल्स प्लांटेड होती है या अगर ये प्लांटेड ना हो तो इसे रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर पैमरा के कानून के मुताबिक कोई भी लाइव ट्रांसमिशन अगर जा रही हो तो उसमें ज़रूरी ये बात होती है, इस कानून में लिखा हुआ है कि कम से कम 10 से 15 सेकंड का डिले हो, यानी वो उसे रोक सकते हो। प्रोड्यूसर इस बात का ख्याल रखता है कि कोई भी ऐसी बात कि जो कि पैमरा के कानून के खिलाफ जारी हो उसे रोका जा सकता है। अब अगर रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर ये कोई कॉल आती है और उस कॉल को अगर रोका जा सकता है तो बिल्कुल रोका जा सकता है और उसे मना भी किया सकता है कि इस तरह की कॉल ना की जाए, लेकिन जानबूझ के ये कॉल्स को आगे बढ़ाया जाता है और इसको फिर वायरल भी करवाया जाता है ताकि ये रेटिंग्स आ सके। अब इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। पैमरा इन तमाम कवानीन का इतलाक यहाँ पर क्यों नहीं करता? हाँ, अगर मैं कोई और गुफ्तगू कर रहा हूँगा तो पैमरा फ़ौरन कह देता है कि जनाब इस पर पाबंदी, लेकिन पैमरा यहाँ पाबंदी की बात नहीं करता है। एक बात आपको, अब 2 नुकात आप ज़हन में रखिएगा। अव्वल ये कि आपके पास इल्म में होनी चाहिए कि कसरत इज़्दवाज या इस तरह के मामलात के ज़्यादा शादियों का मामला ज़्यादा डिस्कशंस में आता है और ज़्यादा डिस्कशंस में आने के बाद ज़्यादा इसको वायरल भी होता है। तो ये एक नुकता तो ये। दूसरा नुकता ये कि क्या इसे पैमरा के कवानीन के मुताबिक रोका जा सकता है? तो बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जाता। इसका मतलब ये होता है कि इसे जानबूझकर चलाया जाता है। अब चलाने के बाद होता क्या है? होता ये कि ये हर जगह डिस्कशन में आ जाता है। अच्छा, दानिश तैमूर और उनकी बेगम आयज़ा खान एक टीवी शो में बैठे होते हैं और वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही होती है। उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब जो है वो मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन फ़िलहाल मैं आयज़ा खान के साथ खुश हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर ये फ़िलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए ज़रा सा कुछ और नुक्तों पर, पहले मैं इन सारी बातों की वज़ाहत, इन सब को एक्सपोज़ करते हैं, हम ज़रा सा हम इनको देखते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आइए तीसरा नुक्ते पर।
तीसरा नुकता ये है कि जब ये सारी चीज़ें, सारी बातचीत हो रही होती हैं, सारे मामलात हो रहे होते हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, तो इसे यूट्यूब पर या फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जाने से रोका जा सकता है। लेकिन वो रोका नहीं जाता और जानबूझ के उसके क्लिप्स काट कर आगे मुंतकिल किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख सकें। तो क्या ये इससे टीवी चैनल्स की पॉलिसी होती है या फिर इसके मुताबिक ही काम करते हैं? एक आइसोलेशन में कोई बंदा, अलहदा कोई बंदा कोई वीडियो बनाता है, समझ में आ सकता है, लेकिन एक टीवी चैनल जो कि बाकायदा पैमरा का लाइसेंस याफ्ता होता है, उसमें से ये मवाद किस तरीके से सोशल मीडिया में जाता है, तो यहाँ से भी ये बात वाज़ेह होती है कि जनाब इसे भी चलने की इजाज़त दी जाती है या जानबूझ के इसे चलवाया जाता है। अब आइए आखिर नुक्ते पर, और आखिर नुक्ता ये है कि क्या हमारे पास रमज़ान में कोई और मौजू नहीं होता और सिर्फ इसी मौजू पर क्यों डिस्कशंस पे इतना फोकस किया जाता है और इसी नुक्ते पर ज़्यादा बात क्यों की जाती है कि जो कि इख्तलाफी उमूर होते हैं या जिन पर इख्तलाफी मामलात होते हैं। अब इख्तलाफी मामलात ज़ाहिर है कसरत इज़्दवाज का इस्लाम ने इजाज़त दी गई है और ये एक मामला बिल्कुल सबके सामने मौजूद है, मगर इसमें बार-बार इस बात को फ़ोकस कर कर चलाना और इस बारे में लोगों को मिसाली तौर पर पेश करना, ये मिसाल आपके सामने मौजूद है। आम तौर पर इसमें इन शोज़ के अंदर हो क्या रहा है, ये भी एक बड़ी मिसाल है और इन शोज़ की एक मिसाल मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि एक एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ही एक प्रोग्राम के अंदर एक मौलाना साहब, आज़ाद जमील साहब जिनका नाम है, वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, वो ज़ाहिर है इसकी चंद मिसालें मैं आपको दे चुका हूँ। उसमें मौलाना आज़ाद जमील साहब ये फरमाते हैं कि जनाब एक साहब का उन्हें फ़ोन आता है और वो फ़ोन आकर ये कहता है कि उन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे और उन्हें ये बताया गया कि जो आज़ाद जमील साहब जो दुआ करते हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल और कबूलियत की है। उसके बाद आज़ाद जमील ये कहते हैं कि जनाब देखिए हमारी ये ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी कबूलियत ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो ख्वाब में आती है और इस बात को बयान करती है। ये कितनी ज़्यादा मकबूलियत है। 4 बजे जो ख्वाब आया, वो फ़ोन आया, तो वो साइल ने मुझसे पूछा कि आप मौलाना आज़ाद जमील बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। कहने लगे आप आज़ाद जमील बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। अननोन नंबर था, तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम आबिद अली है। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो? कहा मैं लड़काना से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा बात करें। कहा मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है और मुझे ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि मेरा मुबल्लिग है या मेरे दीन का दाई है और मेरा नाम लिया। तो उसने उस दिन एक वजीफा बताया है जो तुम्हारे लिए तंगदस्ती से तुम्हें निकाल सकता है, वो वजीफा तुम भी पढ़ा करो। कहा कि मैंने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन सा वजीफा था? कहा आज़ाद जमील ने बताया था कि कुरान की एक आयत है कि इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला, जो इस आयत को रोजाना 1001 दफा पढ़ेगा अल्लाह हर तंगदस्ती से उसे निकाल देगा, तुम भी ये पढ़ा करो। तो ये हमारी ट्रांसमिशन की कबूलियत की निशानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ रहे हैं। अब आपको इस तरीके से पेश करना कि जिस तरीके से वो ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा मकबूल और अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा कबूलियत इख्तियार कर चुकी है, उसका सर्टिफ़िकेट देना एक ख़्वाब की बुनियाद पर भी मायने रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन इन सारे मामलात पर या इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू को करना और उसे बिल्कुल कबूलियत का दर्जा देना इन टीवी चैनल्स की एक ख़ासियत रहती है। अब आते हैं ज़रा-सा एक और टॉपिक पर और एक इसी मौज़ू के साथ लिंक करते हुए एक और बात को भी समझते हैं। क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मामला ज़ेरे बहस होना चाहिए या दीगर उमूर भी ज़ेरे बहस आते हैं जिसमें से एक मामला यह है लेकिन लोग इसे हाइलाइट कर देते हैं। हमने इन टीवी चैनल्स के 3 प्रोड्यूसर से गुफ्तगू की कि जो इस वक्त ये शोज़ कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप यही मौज़ूआत क्यों आपके घूम फिर कर डिस्कशंस में आते हैं कि शादी, 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 शादी। इस वक्त कई मामलात होते हैं कि जिसमें अदल का मामला है, जिसमें इंसाफ का मामला है, जिसमें हुस्न अखलाक का मामला है, जिसमें आपके पास रोज़े का मामला है, जिसमें आपके पास नमाज है, जिसमें आपके पास हज है। बेतहाशा इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम बेतहाशा मौज़ूआत पर डिस्कशन करते हैं और तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन हाइलाइट सिर्फ यही चीज़ हो जाती है और इसमें हमारा कसूर नहीं है। जब हमने उनसे ये पूछा कि इसकी वजूहात क्या है कि आपने ज़ाहिर है रेटिंग्स के लिए
تمام اینکرز کو، تمام اداکاراؤں کو، تمام اداکار کو انگیج کرتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ صرف اور صرف کمرشل ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ دین کی تبلیغ یا معاملات. وہ کھل کر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ کمرشل اور کمرشل پرپزز پر ہمیں ملتا ہے. تو ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان جتنی بھی یہ رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں اس کا مقصد کمرشل پرپز ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر انہیں کمرشل ملتے ہیں. دوم، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ ڈیلے ٹیکٹکس آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس کیونکہ زیادہ تر یہ شوز انٹرٹینمنٹ میں ہوتے ہیں اور وہاں پر کانٹینٹ کی وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے باقاعدہ یہاں پر کانٹینٹ ہیڈ ہوتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کیوں اس کو آگے نہیں بڑھاتے، آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں. تو کہتے ہیں جو چیز چل جاتی ہے، اب ظاہر ہے لائیو ٹرانسمیشن میں اتنا پریشر ہوتا ہے ہم اسے روک نہیں پاتے، یا وہ چل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. ہمارا تیسرا سوال ان سے یہ تھا کہ جب چلے ٹی وی چینل پر چل گئی تو سوشل میڈیا پر آپ اسے کیوں نہیں روکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب اس وقت سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سارا کا سارا سلسلہ کمرشل پرپزز پر کر رہے ہیں. نقطہ کیا سامنے آتا ہے اس ساری ڈیبیٹ میں کہ یہ موضوعات جان بوجھ کے زیر بحث لائے جاتے ہیں. نقطہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے ان اداکاراؤں سے یا اداکاراؤں سے شوز کروائے جاتے ہیں اور اس کا صرف اور صرف پرپز ٹرانسمیشن کے اندر کمرشل پرپز ہوتا ہے، ریٹنگ پرپز ہوتا ہے. اس کا مقصد کسی طور پر بھی دین کی خدمت یا مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہوتا ہے.